The winner of the 2023 Global Teacher Prize is Sister Zef from Pakistan. And now let me welcome on stage Stefana Giannini, the Assistant Secretary General for Education, UNESCO, and Mr. Dino Vaki, patron of the Vaki Foundation. And they will give the award. جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے درمیان آج سسٹر زیف موجود ہیں. گزشتہ سال یعنی 2023 میں ان کی خدمات کے عوض انہوں نے گلوبل ٹیچر پرائز 2023 انہوں نے حاصل کیا. آپ میں سے وہ لوگ جو ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں یا سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں اس پر بہت زیادہ اس بات کا چرچا ہوا اور خداوند کا شکر ہے کہ آج سسٹر زیف ہمارے درمیان موجود ہیں. بہت کم عمری میں انہوں نے خدمت کا آغاز کیا. خصوصی طور پر جو ان کی دلچسپی ہے جو بیٹیاں ہیں, جو گرلز ایجوکیشن ہے اس پر بہت زیادہ ان کا زور ہے, بہت زیادہ فوکس کرتی ہیں ویمن امپاورمنٹ پہ, اور اسی طرح پیس اینڈ ہارمنی بلڈنگ پر انہوں نے بہت زیادہ خدمت کی, بہت زیادہ کام کیا اور اسی کی بدولت انہوں نے بہت سے ایوارڈز حاصل کیے. اور خصوصی طور پر سال 2023 میں انہیں یونیسکو اور دبئی کے کولیبوریشن سے گلوبل ٹیچر پرائز 2023 انہوں نے حاصل کیا, وہ اس کی ونر ہے. اور آپ لوگوں کے لیے ایک اور بھی بڑی دلچسپی کی بات ہے کہ ان کا تعلق گجرانوالہ سے ہے. گجرانوالہ میں ایک گاؤں ہے اروپ, ان کا وہاں سے تعلق ہے اور یہ ہمارے لیے جو گجرانوالہ کے لوگ ہیں ان کے لیے بڑے فخر کی بات ہے, بڑے اعزاز کی بات ہے کہ خداوند نے اپنی بندی کو بہت زیادہ عزت بخشی, اعلیٰ مقام دیا, اعلیٰ رتبہ دیا. سو ہم اس بات کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اور آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں. ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں گے, آپ کی تعلیموں میں میں دعوت دوں گا. سسٹر زیف کو سامنے تشریف لائیں اور ہم انہیں فوراً سے خوش آمدید کریں گے. میں دعوت دوں گا عالی جناب پادری عارف سراج صاحب کو کہ وہ بھی سامنے تشریف لے آئیں, اور اسی طرح میں گزارش کروں گا ریورنڈ پروفیسر نشین خان صاحبہ سے کہ وہ بھی سامنے تشریف لائیں. سسٹر زیف, ہم آپ کو سوئفٹ میموریل فرسٹ پریسبیٹرین چرچ میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ابھی ہم آپ کے گلے میں مالا پہنائیں گے, آپ کو بکے پیش کر کے خداوند کے گھر میں خوش آمدید کہیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ جو خدا نے آپ کو عزت بخشی ہے, جو رتبہ خدا نے آپ کو عطا کیا ہے, جو کامیابی آپ کو بخشی ہے, اس کے عوض ہم پریسبیٹرین چرچ آف پاکستان اور سوئفٹ میموریل چرچ کی طرف سے آپ کو شیل بھی پیش کریں گے. سو میں گزارش کروں گا میڈم نشین خان صاحبہ سے کہ وہ سسٹر زیف کو بکا پیش کریں اور پادری عارف سراج صاحب ان کے گلے میں مالا پہنائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ پادری عارف سراج صاحب کا اور پادری پریسبیٹرین چرچ پاکستان سے ہیں, پادری عارف صاحب ماڈریٹر ہیں اور ریورنڈ نشین خان صاحبہ ٹرینر ہیں, سو وہ بھی ان کو شیل پیش کریں گے. Esteemed
pastors, Dr. Nosheen Saiba, मोहतरम एल्डर साहिबान और क्लीसिया, आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे आज मौका दिया कि मैं आपके पास हाजिर हो सकूँ। आज चूँकि नया साल है और नए साल में हम सब कुछ ना कुछ सोचते हैं कि मुझे अगले साल में क्या करना चाहिए। हमारे बहुत सारे नौजवान यहाँ पे बैठे हैं, आपने भी सोचा होगा कि हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए। तो मेरे पास जितना भी मीडिया आया, नेशनल या इंटरनेशनल, चर्चिस के लोग जो लोग भी आए, सबका यही क्वेश्चन था कि कैसे मुमकिन हुआ, कैसे आप 2023 में दुनिया की नंबर 1 टीचर बन गई। तो मैं अपना थोड़ा सा जो अचीवमेंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अगर आपको एक गांव से उठ के यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पे जाना है तो हम क्या कर सकते हैं। मैं ये समझती हूँ कि आप जो नौजवान यहाँ पे तशरीफ फरमा है उनके लिए ये ही एक मेरी तरफ से बेस्ट गिफ्ट हो सकता है जो मैं आपको दे सकती हूँ। आप सब जानते हैं कि मेरा नाम सिस्टर ज़ैफ है। मैंने 1997 में 13 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था। स्कूल में टीचर का रवैया ठीक नहीं था और मैंने ये सोचा कि मैंने एजुकेशन सिस्टम को तब्दील करना है। जो मेरे साथ हुआ है वो आइंदा किसी बच्चे के साथ नहीं होगा। और मैंने बच्चों को अपने घर के सहन में मुफ्त तालीम देना शुरू की, लेकिन चूंकि मैं बहुत छोटी थी और मेरे माँ बाप के पास भी इतने पैसे नहीं थे कि वो सपोर्ट कर पाते, तो मैंने खुद से कढ़ाई का काम करना शुरू किया और वहाँ से मेरी जर्नी का आगाज हुआ। मैंने खुद को खुद ही पढ़ाना शुरू किया और इस तरह से मैंने MA किया। मैं किसी स्कूल या कॉलेज में कभी नहीं गई, क्योंकि मेरा एक अपना निज़ाम तालीम है जिसमें मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे हैं उनको सवाल पूछने की इजाज़त दी जाए, उनको रिस्पेक्ट दी जाए और जो उनका पर्सपेक्टिव है उसको भी वैल्यू किया जाए। और इसी विजन को लेके मैं चली। 2011 में पहली दफ़ा इंटरनेशनल मीडिया ने मेरे काम को नोटिस किया जब नॉर्वे के एक मैगजीन ने मेरा इंटरव्यू किया और पाकिस्तान में जियो टेलीविजन ने मेरा इंटरव्यू किया। 2012 में मैंने एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया जिसका नाम है वर्ल्ड पल्स। ये अमेरिकन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और 2013 में उनका एक मुकाबला हुआ। आई एम सॉरी, अवार्ड्स की लिस्ट तरह लंबी है इसलिए मुझे ज़बानी याद नहीं रहते। तो 2013 में एक मुकाबला हुआ 192 मुल्कों की ख़वातीन के दरमियान लिखने का और कम्युनिटी इम्पैक्ट का। उसका नाम था लिन सिम्स ग्लोबल प्राइज। वो प्राइज मैंने विन किया 192 ममालिक में से। वो इससे भी बड़ा वैसे था जो भी मैंने विन किया है। तो उसके मुझे $20,000 मिले। मैंने उसका वोकेशनल सेंटर बनाया। अभी तक उस वोकेशनल सेंटर से 6,000 ख़वातीन मुफ्त काम सीख के जा चुकी हैं। 3,000 बच्चों को मैं फ्री एजुकेशन दे चुकी हूँ। लिन सिम्स ग्लोबल प्राइज के बाद सिंगापुर के टीवी चैनल न्यूज़ एशिया ने मेरी लाइफ पे एक फिल्म बनाई। इस फिल्म का नाम है फ्लाइट ऑफ द फैल्कन्स। इस फिल्म को न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल से गोल्ड मेडल मिला। उसी साल अमेरिका से मुझे बायोनियर्स चेंज मेकर्स अवार्ड मिला। उसके बाद मैंने बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन किया। स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्वीडन ने मुझे स्वीडन में स्कॉलरशिप पे बुलाया। डेनमार्क ने मुझे स्कॉलरशिप पे बुलाया। एशिया की सबसे बड़ी वुमेन्स यूनिवर्सिटी ईवा वुमेन्स यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कोरिया ने मुझे स्कॉलरशिप पे बुलाया। वहाँ पे मैंने वुमेन इन जेंडर स्टडीज में अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया। उसके बाद मैं एम्बेसडर रह चुकी हूँ वर्ल्ड पल्स की 2 साल के लिए। ग्लोबल चेंज मेकर्स रह चुकी हूँ। फिर मैं वाहिद पाकिस्तानी माइनॉरिटी वुमेन हूँ जो किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज के सेंटर फॉर इंटर रिलीजियस एंड इंटरकल्चरल डायलॉग की अलुमनाई हूँ। मैं ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क फॉर रिलीजियस एंड ट्रेडिशनल पीस मेकर्स की अलुमनाई भी हूँ और उनके इंक्लूसिविटी बेस्ड कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस की मेंबर भी हूँ। मैं सेंट्रल जेल गुजरावाला की वेलफेयर कमेटी की भी मेंबर हूँ और मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की है फेडरल गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी के प्रोग्राम IFA की तरफ से भी। उनकी भी मैं अलुमनाई हूँ। मैं 20 से ज़्यादा मुल्कों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी हूँ और मैं वर्ल्ड लिटरेसी फाउंडेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसडर भी रह चुकी हूँ। मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँ जिसको एक ही दिन में इस साल
ऑस्ट्रेलियन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन वुमेन चेंजिंग द वर्ल्ड अवार्ड की तरफ से 3 मेडल्स मिले थे, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल एंड ब्रॉन्ज मेडल। मुझे गवर्नमेंट पंजाब ने इसी साल में माइनॉरिटी वुमेन्स लीडरशिप अवार्ड से भी नवाजा। मुझे फेडरल गवर्नमेंट ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान की तरफ से मुराद सिंधी साहब ने भी प्राइड ऑफ पाकिस्तान अवार्ड से मुझे नवाजा। कोविड-19 में जो मैंने काम किया था उस सिलसिले में USAID और फेथ फॉर वैक्सीन्स ने भी मुझे एक अवार्ड से नवाजा। मुझे नोटेबल जो वुमेन है पाकिस्तान में उनकी कैटेगरी में विकिपीडिया ने बेनजीर भुट्टो और मलाला यूसुफजई के साथ भी मेंशन किया है। और अभी भी मुझे सारे जो अवार्ड्स हैं वो मैं नहीं देख पा रही हूँ, बस इतना काफी है। तो हाँ, मैं क्लाइमेट चेंज पे भी काम करती हूँ, बिकॉज यू नो क्लाइमेट चेंज जो है वो इस दौर का एक नया मसला है, सारी ऑर्गेनाइजेशंस उस पर काम कर रही हैं। तो मैंने क्लाइमेट चेंज पे मैंने यूट्यूब चैनल बनाया एंड आई स्टार्टेड गिविंग इन्फॉर्मेशन टू द कॉमन पीपल इन उर्दू लैंग्वेज। लेकिन उसके साथ ही मुझे लगा कि आई शुड इंक्रीज माई नॉलेज अबाउट क्लाइमेट चेंज। सो यूनाइटेड नेशंस के प्रोग्राम environmental program which was funded by European Union, वहाँ से भी मैंने climate change में अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट किया। Its name is Nature Based Solutions for Disaster and Climate Resilience। तो यहाँ से भी मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की। इतने ज्यादा इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के बाद इंडिया के डेली टाइम्स ने मुझे आयरन वुमेन ऑफ पाकिस्तान के नाम से नवाजा। चाइना ने, मतलब दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे मेरे बारे में नहीं लिखा गया, जहाँ के टीवी चैनल रेडियोज ने मेरी एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं किया। 2013 से मुसलसल मैं खवातीन और बच्चों पे ब्लॉग्स लिख रही हूँ। पाकिस्तान में इसलिए नहीं पता बिकॉज मैं एक अमेरिकन मैगजीन के लिए लिखती हूँ, पाकिस्तान में ज्यादा लोग इस बारे में नहीं जानते हैं। इसके बाद खुदावन मुझे वहां पे लेके गया जहाँ पे सिफारिश नहीं चलती, जहाँ पे जाने के लिए आपको साबित करना पड़ता है कि यू आर द बेस्ट और आप ये डिजर्व करते हैं। वो था ग्लोबल टीचर्स प्राइज। इसमें 7,000 टीचर्स ने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया 130 मुल्कों से। पहले 3-4 महीने का इंतहाई टफ क्राइटेरिया जो था, बहुत ज्यादा हेक्टिक था, बहुत ज्यादा डिप्रेशन का सामना करना पड़ा क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ था। 130 ममालिक के टीचर्स थे। पहले मैं टॉप 50 में आई, फिर टॉप 10 में आई, और जो टॉप 10 थे उनको फ्रांस में बुलाया गया हेडक्वार्टर्स में, यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स में। वहाँ पे जो मेरे पास टॉप 10 में जो टीचर्स आए वो थे अमेरिका से, कनाडा से, यूक्रेन से, इंडिया से। लेकिन जब टॉप 10 को बुलाया गया स्टेज पे, तो आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मेरे अंदर एक फीलिंग थी कि आई एम गोइंग टू विन। सो जहाँ पे ट्रॉफी खड़ी थी, मैं बिल्कुल उसके सामने जाके खड़ी होगी। मैंने कहा कि यहाँ पे पिक्चर अच्छी आएगी। सो आई डिड इट, इट हैपेंड। उन्होंने मेरा नाम पुकारा एंड आई बिकेम बेस्ट टीचर ऑफ द ईयर 2023 इन द होल वर्ल्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि I have never been to a school or to a university physically in Pakistan। बाहर के मुल्कों में मैंने बहुत ज्यादा स्टडीज ली स्कॉलरशिप्स पे, लेकिन पाकिस्तान में 7th के बाद में कभी किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं गई। मेरे जमाने में इंटरनेट भी नहीं था। आजकल के जो नौजवान हैं, आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद है। इंटरनेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। आप वहां से जो चाहे आप इल्म हासिल कर सकते हैं, अपना करियर परस्यू कर सकते हैं, एंड यू कैन अचीव एनीथिंग। I give all glory to Jesus Christ. This is my mission to work for education in the world. और मैं आपको ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस करती हूँ कि बहुत जल्दी मैं यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में एजुकेशन पे बात करूंगी एंड एडवोकेसी करूंगी, ना सिर्फ पाकिस्तान के बच्चों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के बच्चों के लिए। और जो मेरा विजन है कि जो बच्चे हैं उनको क्वेश्चन करने की इजाजत देनी चाहिए, उनका जो पर्सपेक्टिव है, उनकी जो बात है उसको वैल्यू करना चाहिए। पूरी दुनिया के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं, वो वहाँ पे मौजूद होंगे और
میں ان کو یہ بات میں بتاؤں گی کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے اور پوری دنیا کا جو میرا ویژن ہے وہ پوری دنیا میں جائے گا اور جو ایجوکیشنل پالیسیز ہیں ان میں اپنا کردار ادا کرے گا. Thank you so much for listening to me and for your precious time.